ओके, तो हम लोग कल का क्विकली रिवाइज कर लेंगे। कल हमने पेयरवाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट के बारे में पढ़ा था, wherein we are going to align two sequences, right? पेयर में दो होते हैं, तो we are going to align two sequences and we are going to search for similarity between the two sequences, correct? So it is going to provide me results for the relatedness of the two sequences, यानी कि वो दोनों sequences कितने related है, are they closely related or they are distantly related. When would they be closely related? When there is a lot of similarity between the bases or in between the sequences. They're going to be distantly related when जब उनके sequences में, उनके bases में similarity कम है या नहीं है. Okay, so when I study the sequence alignment of two sequences, I would know how related the two sequences are. One would be my known sequence, one would be my unknown sequence. So it is also okay. तो हमने यहाँ देखा था कि if they are going to be related, उनमें जब similarity हमको पता चल जाता है कि when the two sequences are going to be similar, it would mean that they have come or they have derived from a common evolutionary origin. So it's also going to give me the evolutionary relationship between the two sequences, correct? Okay. So the overall goal is in such a way that or to find the best pairing, of course, and such that there is maximum correspondence among the residues. What are residues? ये भी हमने पढ़ा था, right? Residues are what? Can anybody tell me what are residues? Amino acids. Miss, voice Poly. is very low to hear Voice me. is very low. सबको ऐसा हो रहा है कि कैसा है? सभी को No. मेरा आवाज कम आ रहा है क्या? No. नहीं, मे बी और वॉल्यूम में भी लो, क्योंकि मैंने ईयरफोन्स डाले हुए हैं, सो द माइक इज वेरी क्लोज टू माय माउथ. तुमको आवाज आनी चाहिए. Rejoin ओके, वी वर again. एट रेसिड. हाँ, यू कैन रीजॉइन. यस यस. Okay, Miss. हाँ, तो हाँ, रेसिड्यूज. दिव्या, यू सेड अमीनो एसिड्स. Yes, अमीनो ma'am. एसिड्स. ओके, बट अमीनो एसिड्स तो अमीनो एसिड्स होते हैं, वो रेसिड्यूज कब प्रोटीन बनेंगे? पॉलीपेप्टाइड चेन जब भी फॉर्म होता है, हाँ. सो उसका प्रोटीन्स आर द रेसिड्यूज. See, technically, जब amino acids are going to come together and they're going to form a polypeptide chain, after they form the polypeptide chain, जो उनके amino acids होते हैं, उनको हम बोलते हैं residues. That happens, amino acids are going to be called residues after they form the polypeptide chain. ठीक है? Okay. So there are two different alignment strategies, global and local alignment, है ना? ये हमने थोड़ी डिटेल में देखे थे कल. So what is global alignment? In global alignment, the software or the program or the algorithm is going to assume that the two sequences to be aligned are similar over their entire length. यानी मेरा unknown sequence and the known sequence from the database are assumed to be of the are assumed to be similar, means having similar bases or sequences over their entire length. ठीक है? The alignment is carried out from the beginning to the end across the entire length. तो अगर मेरा unknown sequence is of length m and my known sequence is of length n, it is assumed कि दोनों का जो length है, size है, it is over the entire length, the sequences are similar. यानी कि जो bases है वो दोनों sequences में similar है. ये assumption होता है global alignment में. Okay, there is a base by base alignment. It will allow mismatches and gaps as well. The method is more applicable for aligning two closely related sequences of roughly the same length. ये भी हमने देखा था. We are going to use global alignment tool for sequence alignment when जब हमें पता है कि दोनों जो sequences है, they're very closely related to each other. When they're closely related to each other, we would तो हम बोल सकते हैं कि ये similar है and they have to be of the roughly of the same length.
But for divergent sequences and sequences having variable length, global alignment may not be able to give us optimal results. Okay, so ये हमने पढ़ा था global alignment के बारे में. तो we have a target sequence up and our query sequence down. So your query sequence is your unknown sequence and your global target sequence is the one known sequence from the database. बराबर. तो the alignment अगर देखेंगे तो roughly दोनों sequences are roughly of the same length. Okay, so there is a base by base pairing, A के against A, C के against C, T के against T, यहाँ पे G के against G. So each time A pairs with A, C pairs with C, T with T, G with G, that is your match. Correct? When a boy is standing against a boy, it is a match. When a girl is standing against a girl, it's a match. But when a boy is standing against a girl, that becomes a mismatch. In the similar way, here T and A are a mismatch. G and C would be a mismatch, right? And gap कब पड़ता है? When there is no base only to pair with it. है ना, मेरे query sequence में वो bases ही नहीं है जो मेरे target sequence के साथ pair up हो जाए. Because मेरा query sequence क्या करेगा? It would rather go and pair with similar sequences than going and pairing with the unsimilar sequences. बराबर है ना. अगर मेरा यहाँ पर A है और यहाँ पर C है और तीसरा G है, instead of pairing here and forming a mismatch with T, it would rather go and find a matching sequence, matching base से वो जाके pair up हो जाएगा. That's when a gap forms कि जब query sequence में bases नहीं होते हैं जो जाकर target sequence के साथ match हो जाए, a gap is formed. But when is a mismatch formed? When जो तुम्हारे sequences है, they are very closely related, है ना. यहाँ पर A G C A A C C A है, so it would rather go and bind here. It can allow mismatches and gaps, global alignment. So it would rather go and bind there and find the similarity. That's when gaps are found and mismatches are formed. ठीक है, ये था global alignment के बारे में. Local alignment is typically the opposite of it. तो लोकल अलाइनमेंट में क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज नो अजम्पशन ओनली कि वो दोनों सीक्वेंसेस आर गोइंग टू बी सिमिलर. बराबर. इट विल फाइंड लोकल रीजंस विद हाईएस्ट लेवल ऑफ सिमिलैरिटी, अनलाइक ग्लोबल अलाइनमेंट. It is used for more divergent sequences, whereas global alignment we are going to use it for closely related sequences. But local alignment हम और divergent और far distantly related sequences के alignment के लिए हम use कर सकते हैं. Okay, it is also used for aligning sequences of different lengths, है ना. Global alignment में they have to be of the similar length, but in case of local alignment they can be of varying length. Means your query sequence can be short and your target sequence could be long. तो भी alignment, local alignment similarity find करके उसका score देगा. Okay. So your target sequence is typically very longer than your query sequence here, correct? It's again going to bind similar base by base pairing यहाँ पर भी होता है. So T against T, A against A, C against C, T against T, but T and C forms a mismatch here. तो वहाँ पर एक बार नहीं है. It continues matching with a similar basis. It is going to give me the similarity. तो if you say from 100% इसकी similarity कितनी होगी? 80% इसकी सिमिलैरिटी है, बिकॉज सिर्फ दो ही ऐसे मिसमैचेस तुमको दिख रहे. देयर आर नो गैप, सो देयर इज ऑलमोस्ट 80% सिमिलैरिटी इन दिस केस. ठीक है, ये दोनों अलाइनमेंट्स क्लियर है सबको? किसी को भी कोई भी डाउट है तब भी पूछो. आगे हम एल्गोरिदम्स पढ़ने वाले इसलिए बोल रही हूँ. Nobody? Clear, ma'am. Shubham, you weren't there for yesterday's lecture. Is it clear? और कौन नहीं था कल के लेक्चर में? शुभम, साइन इन करके चले गए क्या? Whatever. So moving on,
to today's topic. So we're going to study about alignment algorithms और methods of sequence alignments. ओके तो अब तक हम पेयर वाइज अलाइनमेंट देखा है अब तक, बराबर. हमारा मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट बाकी है. बट बिफोर वी गो टू द डेप्थ ऑफ दैट, वी आर गोइंग टू स्टडी अ फ्यू एल्गोरिथम्स. ठीक है, जिन एल्गोरिथम्स के बेसिस पर अलाइनमेंट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, वो हम पढ़ने वाले. सो अलाइनमेंट एल्गोरिथम्स और मेथड्स ऑफ सीक्वेंस अलाइनमेंट, ये टूल्स होते हैं. See, there are tools which are going to do the sequence alignment for me, like BLAST है, FASTA है, हमने SW method देखा था. Then there for multiple sequence alignment there is cluster omega, there is a PAM matrix. ठीक है, ये सब चीजें हैं. So there are different tools जिनके पीछे एक एल्गोरिदम है, जिनके पीछे एक प्रोग्राम है, जो हम पढ़ने वाले हैं. ओके, important वाले ही मैं पढ़ा रही हूँ. I will try my level best to make you guys, you know, in a simple way, ताकि तुम समझ जाओ. Okay, we are going to go one at a time. Slow जाएंगे थोड़ा, ठीक है? Alright. So alignment algorithms both global and local. अब हमने देखा कि global alignment में क्या होता है, local alignment में क्या होता है. But the algorithms behind them, मतलब उनका जो back work है, हमको जो result आ रहे हैं वो नहीं, उसके पीछे का जो काम है, जो एल्गोरिदम है, दे आर फंडामेंटली सिमिलर. ठीक है, मतलब बेस उनका है वो सेम है, बट देयर आर अदर थिंग्स दैट आर डिफरेंट. लाइक उनका वर्किंग, द बेस इज द सेम, बट द other working or the depth of the working will be little different. So like they differ in the optimization strategy which is used in aligning the similar residues. So the methods of sequence alignment जो हम पढ़ने वाले हैं, first is the dot matrix method or the dot plot method, then the dynamic programming method, then scoring matrices and the heuristic method. So heuristic methods में यहाँ पे भी BLAST and FASTA आते हैं. Okay, and under dynamic programming we have the SW method and all. ठीक है, but for now we are studying the alignment algorithms behind all the search tools like your BLAST and FASTA and stuff. Okay. Sandhya is not. Okay. ठीक है. So we are going to study dot matrix method today. So what is the dot matrix method? सबको मैट्रिक्स पता है क्या होता है पहले तो? Just give me a moment. हाँ. Okay. So the dot matrix method. किसी को पता है मैट्रिक्स क्या होता है? That was my question. बोलो. किसी को मैट्रिक्स नहीं पता क्या होता है? किसी ने मूवी भी नहीं देखी मैट्रिक्स? डोंट टेल मी. कीनू रीव्स की मूवी नहीं देखी, किसी ने भी नहीं देखी? बॉयज में से भी नहीं? हाँ, सब सो गए क्या? नो मैम, नो मैम, नहीं मैम, नहीं देखी? ओह गॉड, सच्चे में नहीं देखी क्या? ऐसे नहीं जवाब नहीं देना, इससे नहीं बोल रहे तुम लोग. पता ही नहीं. पता ही नहीं? अरे यार, इट्स सच अ गुड मूवी मैट्रिक्स. मैम देखी भी होगी तो भी याद नहीं. देखी होगी तो भी याद नहीं, मे बी. कीनू रीव्स की मूवी है मैट्रिक्स. इट्स अ प्रीटी गुड मूवी. इट्स ऑल अबाउट कंप्यूटर्स एंड ऑल दैट स्टफ. ठीक है, उसके बहुत सारे पार्ट्स है, कभी टाइम मिले तो देख लेना. Okay, so anyways, let's come back. Okay, so the most basic sequence alignment method, dot matrix, is the most basic, मतलब सबसे easy, सबसे basic, सबसे चिंदी method, basic language में, is the dot matrix method. It is also known as the dot plot method. ठीक है? It is a graphical way of comparing two sequences in a 2D matrix. 2D matrix कुछ नहीं, just a table with rows and columns. Okay.
The sequences, the two sequences which are to be compared are written in a horizontal and in the vertical axis of the matrix. Table देखेंगे तो याद हो जाए, समझ में आ जाएगा. Okay. The comparison between those two sequences. So एक table है, उसके एक एक्सिस पर यानी तुम्हारे एक्स एक्सिस पर एक सीक्वेंस है, वाई एक्सिस पे एक सीक्वेंस है, which we are going to compare. Okay, the comparison between the two, yani we are going to search for the similar residues, right, or the similar bases, which is done by scanning each residue of one sequence for similarity with all the residues in the other sequence. जब हम टेबल में मैं तुमको बताऊंगी तभी सब क्लियर होगा, but theoretically try to understand or imagine what is happening. ठीक है, एक सीक्वेंस यहाँ है and one sequence is here in the table. So I'm going to compare this sequence with this base with this base. फिर यहाँ पर भी एक बेस है, इसी बेस को इसी बेस के साथ कंपेयर करूंगी. तीसरा बेस है, इसी बेस को इसी बेस के साथ मैं कंपेयर करूंगी. Same goes with proteins. When we're talking about residues, we're talking about proteins. Okay, so we're going to scan each protein residue against another protein residue of both the sequences. ठीक है? Now, if a residue match is found, or if we are talking about nucleotides or DNA, if the bases are matching, a dot is placed within the graph. Otherwise, the matrix positions are left blank. Okay, तो अगर match होता है G and G, if they match, a dot is placed. ठीक है, if G and T है, they are not a match, तो कुछ भी नहीं, उसको हम blank छोड़ेंगे. When the two sequences have substantial regions of similarity, many dots line up to form contiguous diagonal lines which reveal the sequence alignment. So when we get a diagonal line, diagonal पता है ना क्या होता है? एक vertical line होता है, एक horizontal line होता है, and there is a diagonal. ठीक है? तो जब एक diagonal बनता है उस matrix में, उस table में, we say that it is a similarity score. ठीक है? और just a similarity for now. And it will reveal the sequence alignment. Now, if there are interruptions in the middle of a diagonal line, they indicate insertions or deletions. अब जरूरी नहीं है कि हर दो sequences के alignment में तुमको एक सीधा diagonal line मिलेगा. सीधा diagonal मतलब a continuous diagonal line. Okay, it is possible that it may break somewhere. You might get one diagonal line here, कहीं break होकर यहाँ पर मिलेगा. So why that happens? It indicates that there is an insertion of a gene or a deletion of a gene or a base or a residue. ठीक है, तो अगर लाइन में डायगोनल में अगर इंटरप्शंस है, इसका मतलब है इंसर्शंस है या तो डिलीशंस है. ठीक है, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं. ओके, नाउ parallel diagonal lines within the matrix will represent repetitive regions of the sequences. यानी कि एक टेबल है, यहाँ पर एक डायगोनल है, यहाँ पर एक डायगोनल है एंड यहाँ पे एक डायगोनल है. इसका क्या मतलब होगा? दे आर ऑल पैरेलल टू ईच अदर. इसका मतलब है देयर आर रिपीटेटिव रीजन्स इन द सीक्वेंसेस, यानी AGCT 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 रिपीट हो रहा है, जिसकी वजह से हमें डायगोनल पैरेलल लाइंस मिल रहे हैं. ओके, the dot matrix method gives a direct visual statement of the relationship between two sequences and helps easy identification of the regions of greatest similarities. So when you see a dot matrix or a table, you can देख के समझ में आएगा कि similar है कि नहीं है. ठीक है? One particular advantage is in identification of sequence repeat regions. One second. Okay, so advantage is that in identification of sequence repeat regions based on the presence of diagonal lines of the same size vertically or horizontally in the matrix. तो इसका मतलब क्या है? We can identify the sequences that are repeating or the repetitive regions on the sequences depending on the lines parallel presence of the diagonals which are present, whether they are of the same length or not. Depending on that हम predict कर सकते हैं कि कितने sequences repeat हो रहे हैं या कितने regions repeat हो रहे हैं एक sequence में, मतलब दोनों sequence को मिलाकर. ठीक है? Examples of the programs which use dot matrix method, or if you want to see practically करके, so you can use these programs like Do the Helix,
then matrix plot, dotlet, dotter, dot up, for alignment of protein and nucleic acid sequences. ठीक है, सिलेबस में हमारे वेबलैम में नहीं है, बट इन केस यू वांट टू ट्राई इट आउट यू कैन. ठीक है, you can also visit the programs. So this is what your dot plot looks like or your dot matrix looks like. ठीक है, so this is the x axis or the horizontal axis, right? This is my y axis or my vertical axis. This is my matrix, two-dimensional matrix or my table with rows and columns. So my one sequence is going to be on top, that is in horizontal axis of the table, and one sequence in the vertical or the y axis of the matrix or the table. Okay, so this is how it is arranged. Okay, both my sequences, out of which one is going to be my target sequence, one could be my query sequence, and I need to check the similarity between the two. Okay, now A and T are not similar. Similarity में हम क्या देखते हैं? Same basis देखते हैं ना, A against A, T with T, G with G, C with C. बराबर? Now, sorry. So A and T are not a pair, so they are left blank. Again, G and A is not a pair, left blank. A and C, not a pair, left blank. A and A is a pair, right? It is a base similarity, so we put a star or a dot. Okay, so I'm going to run or check, compare my A against all my bases, not just with T. A against T, A against G, A with C, A with A, same है, similar है तो dot या star. A with T blank, A with C blank, A with T, A with T blank, blank, blank. क्यों blank है? Because they are not similar, है ना? एक ही A है A के साथ, तो एक ही dot आएगा. बराबर. Then I go with my second base, that is my G. G with T नहीं है, G with G है, so I put a dot. Same, G with C, G with A, G with T, G with C, G with T, G with T. जहाँ जहाँ G है वहाँ वहाँ ही dot आएगा. Okay, so I do it for all my bases. If it was proteins, I would go for all my protein residues. It is very easy for nucleotide to show nucleotide sequences rather than showing it in the protein sequences. वो बहुत complex हो जाता है. That is why in examples I have tried to include only nucleotide bases so you can understand कि base pairing या base similarity कैसे देखते हैं. Okay. Now, if you see there is a diagonal, it's an interrupted diagonal. बराबर. तो हमने क्या देखा था? Diagonals कब होते हैं? When there are similar sequences. अब यहाँ पे एक गैप है, यहाँ पे एक गैप है. What that could mean? It could mean कि यहाँ पर insertions या deletions है. Okay. Now depending on this diagonal, I can say कि हाँ, my sequence is pretty much बहुत similarity है मेरे query sequence में और मेरे target sequence में काफी सारी similarity है. If there had to be no diagonal formed, it would mean that my sequences are not similar at all. Okay, सबको समझा? डॉट प्लॉट, डॉट मैट्रिक्स, किसी को कोई डाउट है? जल्दी बोलो. No. Okay, I want that from everybody, not just from one person. So I should know कि सबको समझा है, because आगे जाके चीजें और कॉम्प्लेक्स होने वाली है. That is why I'm asking you guys. Please बोलो कि मैं एक एक करके पूछूं, बेटा समझा, बेटा समझा. मैम इट इज क्लियर. Okay, दिव्या एंड रोशन के लिए क्लियर है. मैम और किसके लिए? हाँ छाया. हाँ छाया एक्सप्लेन बोलो. फिर से. फिर मैम फिर explain से करो एक बार सिर्फ. एक्सप्लेन करो ना. हाँ 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 मैं करती हूँ. मैं पूछ रही हूँ कि सिर्फ ये टेबल एक्सप्लेन करो कि पीछे का थ्योरी भी एक्सप्लेन करो. टेबल एक्सप्लेन करना है. टेबल हेलो छाया. मिस, हाँ थेरी में थोड़ा सा बताओ ना. ओके ठीक है. बाकी किसी को भी डाउट है तो प्लीज कान खोल के सुनो, आंख खोल के देखो. ठीक है. सो ओके. So the dot matrix method सबसे basic, सबसे easiest alignment method है, and the other name for it is the dot plot method. ठीक है, जिसमें हम dots
प्लॉट करते हैं, ग्राफ में हम प्लॉटिंग करते हैं, राइट, सेम वे इसमें हम एक मैट्रिक्स में, एक 2 डायमेंशनल टेबल में या मैट्रिक्स में हम डॉट्स प्लॉट करने वाले हैं। कहाँ प्लॉट करने वाले हैं वो आगे देखेंगे। ओके, सो अनदर थिंग इज इट इज अ ग्राफिकल वे ऑफ कंपेयरिंग टू सीक्वेंसेस। ठीक है, the two sequences to be compared are written on the horizontal and the vertical axis of the matrix। बराबर है ना, ऊपर का जो पार्ट है या जो स्लीपिंग लाइन है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, जो स्टैंडिंग लाइन है वो है तुम्हारे वर्टिकल एक्सिस। ग्राफ में क्वाड्रेंट में तुम्हारा जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इट इज योर एक्स एक्सिस एंड योर वर्टिकल लाइन इज योर वाई एक्सिस। बराबर, तो अगर ये एक टेबल का एक्सिस है तो क्या हो रहा है, यहाँ पर एक सीक्वेंस होता है और वर्टिकल में एक सीक्वेंस होता है। ठीक है, तो इसमें से कोई भी एक मेरा क्वेरी सीक्वेंस हो सकता है, एक मेरा टारगेट सीक्वेंस हो सकता है, राइट। तो माय टारगेट सीक्वेंस इज गोइंग टू बी अप एंड माय क्वेरी सीक्वेंस इज गोइंग टू बी डाउन वर्टिकल में। ठीक है, अभी कंपैरिजन कैसे होता है, बाय स्कैनिंग ईच रेसिड्यू ऑफ वन सीक्वेंस विद ऑल अदर रेसिड्यूज। रेसिड्यूज हम कब बोलते हैं, जब हम प्रोटीन सीक्वेंस की बात कर रहे होते हैं, करेक्ट। तो अगर मेरा एक सीक्वेंस यहाँ पर है, एक सीक्वेंस यहाँ पर है, एक रेसिड्यू, एक रेसिड्यू, ये एक रेसिड्यू, दूसरा रेसिड्यू, एक रेसिड्यू, तीसरा रेसिड्यू, मतलब इस सीक्वेंस का फर्स्ट रेसिड्यू, इस सीक्वेंस का फर्स्ट रेसिड्यू मैं कंपेयर करूंगी, आर दे द सेम, आर दे सिमिलर, इफ यस तो यहाँ पर एक डॉट आएगा। Then I will go to my second residue of my ऊपर वाला sequence. I will compare my first residue, my second residue. Are they the same? No. I will move on. Third residue, first residue. मैं compare करूंगी. Are they the same? No. I'll move on. Fourth residue, first residue. Same way में मैं यहाँ पे जितने भी रेसिड्यूज हैं उनको एक एक करके मैं कंपेयर करूंगी मेरे टारगेट सीक्वेंस के रेसिड्यूज से। ये प्रोटीन्स के लिए हुआ। न्यूक्लिक एसिड्स में क्या होते हैं, बेसिस होते हैं, है ना, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, ATCG। तो यहाँ पे मैं A और अगर यहाँ पर A है तो मैं इनको कंपेयर करूंगी, सिमिलर है डॉट। यहाँ पर T है, इस A को इस T के साथ कंपेयर करूंगी, सिमिलर है नहीं है, छोड़ दूंगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रेसिड्यू, नेक्स्ट बेस। So I'm going to compare every base of my query sequence with every base of my target sequence। वैसे हम compare करेंगे, ठीक है। और अगर वो दोनों bases सेम रहे या दोनों रेसिड्यूज प्रोटीन्स के सेम रहे तो मैं वहां डॉट डालूंगी। इफ दे आर नॉट गोइंग टू बी सेम मैं खाली छोड़ दूंगी। ठीक है, यहाँ तक समझा? यस मैम। ओके, नाउ ए फॉर रेसिड्यू मैचेस फाउंड, यानी कि जब मैंने बोला अगर दोनों बेस सेम है, ए है तो डॉट आएगा, अदरवाइज द मैट्रिक्स पोजीशंस आर लेफ्ट ब्लैंक। ए है और सेकंड रेसिड्यू यहाँ टी है, मैच नहीं हो रहा है, खाली छोड़ दिया। सेम गोज विद द प्रोटीन रेसिड्यूज। ठीक है, यहाँ पे CH3 ग्रुप है, यहाँ पे भी CH3 ग्रुप है, डॉट। यहाँ CH3 ग्रुप है, यहाँ पे सल्फर है, नो डॉट, नो डॉट। ठीक है, when the two sequences have substantial regions of similarity, माने उनमें काफी सारे रीजन्स है, दोनों सीक्वेंसेस में काफी सारे रीजन्स है जो सिमिलैरिटी है, मतलब सेम है ना, तो वो डॉट्स क्या हो जाएंगे, एक डायगोनल बन जाएंगे which will reveal the sequence alignment। तो अगर डायगोनल अच्छा खासा लंबा डायगोनल बनता है, इसका मतलब क्या होता है कि दोनों सीक्वेंसेस आर वेरी मच सिमिलर। ठीक है, नाउ अगर डायगोनल में इंटरप्शन है, मतलब बीच में से कट गया है, उसका मतलब क्या होता है, देयर आर इंसर्शंस और डिलीशंस। इंसर्शंस का मतलब क्या होता है, डालना। डिलीशंस का मतलब क्या होता है, वहां पर नहीं है, निकल गया। ओके, parallel diagonal lines within the matrix are going to represent repetitive regions of the sequences। For example, मेरा एक टेबल है, ओके, यहाँ पे एक डायगोनल है, लाइन है, यहाँ पे एक डायगोनल लाइन है, यहाँ पे एक डायगोनल लाइन है, यहाँ पे मतलब 3 डायगोनल लाइंस है। ठीक है, मेरे पास इतनी ही उंगलियां हैं तो आई कांट मेक अनदर डायगोनल। ठीक है, तो मेरे 3 डायगोनल लाइंस है, ओके, इन द टेबल। सो दे आर पैरेलल एंड दे आर डायगोनल, करेक्ट। सो दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट कि दोनों सीक्वेंसेस में बहुत सारे रेपिटेटिव रीजंस है। माने मेरे क्वेरी सीक्वेंस में, मेरे
टारगेट सीक्वेंस में सिंस देयर आर 3 डायगोनल लाइंस, इट मींस दैट 3 पैरेलल डायगोनल लाइंस, इट मींस दैट कि बहुत सारे रेपिटेटिव रीजंस है। ओके, ठीक है। सो द डॉट मेथड इज गोइंग टू गिव मी अ विजुअल स्टेटमेंट, मतलब मैं वो टेबल देख के ही बोल सकती हूँ कि अच्छा इसमें अच्छा खासा सिमिलैरिटी है। अगर एक ही डायगोनल लाइन है मतलब दे आर सिमिलर। अगर बहुत सारे पैरेलल डायगोनल लाइंस है, इसका मतलब क्या होता है कि देयर आर मेनी रेपिटेटिव रीजंस इन द सीक्वेंसेस। ठीक है, एग्जांपल्स है मेथड्स, ये मेथड कौन से प्रोग्राम्स यूज करता है वो एग्जांपल्स यहाँ पर है। ठीक है, so we are going to dot matrix method is used for the sequence alignment of both proteins as well as nucleic acid sequences. ठीक है, रेसिड्यूज कब आते हैं, मतलब when they are talking about this residue match, scanning each residue, जब हम प्रोटीन्स का सीक्वेंस अलाइनमेंट कर रहे हैं। but when you are talking about nucleic acid sequences we talk about bases. ठीक है, this is your 2-dimensional matrix or your table with rows and columns, right? ये vertical columns होते हैं और ये horizontal rows होते हैं। तुम्हारा एक sequence on the horizontal axis और the x axis, एक sequence y axis पे या vertical axis पर है। ठीक है, ये तुम्हारी bases है। It's a nucleotide sequence alignment हम यहाँ कर रहे हैं। So they are all bases of the target sequence, bases of the query sequence. ठीक है, सॉरी। सो जहां पर भी सिमिलर बेस है, अब A and T is not similar, A and G is not similar, A and C is not similar, but A and A are similar, इसलिए इस मैट्रिक्स के सेल में एक डॉट आएगा। फिर मैं इसी रेसिड्यू को, इसी बेस को T के साथ कंपेयर करूंगी, नो मैच। C के साथ कंपेयर करूंगी, नो मैच। A को T के साथ कंपेयर करूंगी, नो मैच। तो ये सब खाली रह जाएंगे बिकॉज देयर इज नो मैच विद A। ठीक है, then I will move on to my second base. अगर ये प्रोटीन होता तो I would move on to my second residue, compare it with the first residue. अगर प्रोटीन है तो since it's nucleic acid, I will compare my second base with my first base. No similarity. Moving on to the second base. G and G है, similar है, dot. Moving on, second base with the third base, no similarity. Moving on to the fourth base and likewise till the end. ओके, तो जहां जहां G रहेगा, G and G डॉट, एंड तक मैं मेरे लास्ट बेस को फर्स्ट बेस के साथ भी कंपेयर करूंगी, लास्ट बेस तक मैं उसको कंपेयर करूंगी। ठीक है, सारे डॉट्स डालने के बाद आई विल चेक कि डायगोनल कहाँ बन रहा है, सबसे बड़ा डायगोनल कहाँ बन रहा है। ठीक है, तो अभी यहाँ से लेकर यहाँ पे इंटरप्ट हो रहा है, यहाँ पे इंटरप्ट एंड देन यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है। तो दिस इंडिकेट्स दैट, इंटरप्शंस इंडिकेट कि यहाँ पे या तो इंसर्शंस हुए हैं या तो डिलीशंस हुए हैं, जीन का इंटरप्शन या इंसर्शन या डिलीशन हुआ है। एंड दिस डायगोनल लाइन विल आल्सो रिप्रेजेंट द सीक्वेंस सिमिलैरिटी बिटवीन बोथ द सीक्वेंसेस। ठीक है, अगर ये डायगोनल लाइन नहीं होता ही नहीं, तो इट वुड मीन कि बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है सीक्वेंसेस। ठीक है, अगर ये डायगोनल लाइन के साथ और एक यहाँ डायगोनल लाइन होता, और एक यहाँ डायगोनल लाइन होता, और एक यहाँ डायगोनल लाइन होता, तो वी वुड से दैट देयर आर रेपिटेटिव रीजंस ऑफ द सीक्वेंसेस। मतलब 3-4 रेपिटेटिव सीक्वेंस रीजंस है इन दोनों सीक्वेंसेस में। ठीक है, आप समझा? हाँ अभी भी मैम। किसी को कोई डाउट है? नो। हाँ, डायगोनल फॉर्म होता है डायगोनल, तो उसमें वो सिमिलैरिटी शो करता है, बट जो सिंगल डॉट्स है उसका मीनिंग क्या होगा, उसको कैसे कंक्लूड करेंगे? उसको तो मैं कंक्लूड कर वो जो प्रोग्राम तुम्हारा रहेगा, फॉर एग्जांपल ब्लास्ट है जो डॉट मैट्रिक्स यूज कर रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल बोल रही हूँ मैं, तो वो लोग तुमको इन डॉट्स का कुछ रिजल्ट नहीं देंगे। यू आर पुटिंग दीज, यू आर प्लॉटिंग द डॉट्स टू ड्रॉ द डायगोनल्स। ठीक है, इन डॉट्स का कोई मतलब नहीं है बाद में जब तुम्हारे डायगोनल्स बन जाते हैं। Why we are plotting the dots? So that we can later on draw the diagonal. हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल सेंटर से हमको प्लॉट करना है ग्राफ, बराबर। हम वो डॉट्स क्यों प्लॉट करते हैं? सो दैट वी ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन
वो डायगनल ही होता है अल्टीमेटली। इट्स द सेम, वही फंडा यहाँ पर भी है। वी आर प्लॉटिंग द डॉट्स टू ड्रॉ द डायगनल। हम लोग जब डायगनल ड्रॉ करेंगे तो हम उसको कंक्लूड करेंगे कि इन दोनों सीक्वेंसेस के बीच में सिमिलैरिटी है। अगर ये डायगनल ड्रॉ ही नहीं होता, इन स्पाइट ऑफ पुटिंग ऑल माय डॉट्स, इट वुड मीन कि मेरे सीक्वेंसेस में कोई सिमिलैरिटी नहीं है। ओके शाइस्ता? यस मैम। ओके, एनीबॉडी एल्स? और कोई है जिसको कोई डाउट है? आकांक्षा, इज इट क्लियर? यस मैम। आरती? यस मैम। अश्लेषा? यस मैम। ब्लेसी? हाँ चिराग? मैम हम ये प्रैक्टिकली परफॉर्म करने वाले हैं कैसा? नहीं, डॉट मैट्रिक्स हम नहीं करने वाले। तुम्हारे लिए प्रैक्टिकल्स जो है दे आर बेसिकली ब्लास्ट है, फास्टा है, देन पीडीबी में सर्च कैसे करते हैं स्ट्रक्चर, फिर उसको हम आगे कैसे पढ़ते हैं, वो सब है। वी आर नॉट गोइंग टू डू दीज प्रैक्टिकल्स। ये सब बैक एंड होता है, बैक ऑफिस में कैसे होता है काम, वैसा काम है ये सब। वी आर नॉट गोइंग टू डू इट प्रैक्टिकली, बट यू नीड टू नो दीज थिंग्स। ये इंफॉर्मेशन चाहिए है कि वो टूल्स कैसे काम करते थे, अल्टीमेटली एल्गोरिथम्स। ओके, who else? Blessy, is it clear? Okay, Rushikesh? Clear, miss. Okay, Roshan? हाँ मैम, ये श्रद्धा? पूछना था, हाँ बोलो। ये नीचे से जो टी है ना, आप सिमिलरिटीज को बोल रहे थे ना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों सिमिलर होना चाहिए। तो ये सेकंड नीचे नीचे से जो टी है ना, उसका सेकंड वाला डॉट सिमिलर तो नहीं है सी और ये टी? पता है मुझे। सी उसके पीछे भी डिटेल में अगर अगर जाना है ना, तो कभी कभी क्या होता है, सिंस इट इज अ वेरी बेसिक अलाइनमेंट, उसमें उसका जो प्रोग्राम रहता है, इट नीड्स टू ऑल्सो डिफरेंशिएट बिटवीन अ मैच एंड अ मिसमैच। ठीक है, तो इट इज वेरी मच हाँ पॉसिबल कि मैंने ये टेबल खुद बनाया नहीं है, मैंने टेबल कहीं से लिया हुआ है। ठीक है, तो इट इज वेरी मच पॉसिबल कि वो मिसप्रिंट हुआ होगा, मैंने भी वो चीज देखी। हाँ, टी क्योंकि एंड सी मैंने इज अभी नॉट ड्रॉ किया सिमिलर। टेबल, और आप सिमिलरिटीज के बोल रहे थे ना, उस हिसाब से मैंने ड्रॉ हाँ, किया, तो कुछ डॉट्स नहीं आ रहे इसमें। राइट राइट राइट। सी उन्होंने यहाँ पर भी सी और टी के साथ उन्होंने डॉट डाला हुआ है, जबकि वहां डॉट हाँ नहीं आना चाहिए था। यस, वो मैंने भी देखा। हाँ, ओके, चलो। जस्ट नो कि वी आर ऑलवेज सीइंग फॉर सिमिलैरिटीज, इसलिए मैंने ऊपर वाले एक्सप्लेन किया, नीचे वाले नहीं किए, बिकॉज उसमें मैंने एरर्स देखे। ठीक है, हाँ ओके। ओके श्रद्धा? यस मैम, क्लियर। ओके, शुभम क्लियर है? ओके, व्हाट अबाउट स्नेहल एंड विकास? यस मैम, क्लियर है। ओके, स्नेहल समझा? हाँ मैम। ओके ओके, ठीक है। ओके, तो हम आगे का पढ़े डायनामिक, कि यहाँ रुकना है, कि बहुत ज्यादा हो गया आज के लिए? नहीं नहीं, कंटिन्यू। ओके, एवरीबडी एल्स इज फाइन विद इट? यस मैम। ओके, ठीक। डायनामिक प्रोग्रामिंग मेथड। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग में क्या होता है, इट इज गोइंग टू ब्रेक द अलाइनमेंट ऑफ द सीक्वेंसेस। बड़ा सीक्वेंस है, उसको वो लोग अलाइनमेंट जो रहता है उसको वो लोग ब्रेक डाउन करेंगे छोटे छोटे पार्ट्स में। ठीक है, फॉर जैसे कि जस्ट रिलेटेड विथ एक बड़ा सा प्रॉब्लम है। ठीक है, rather than solving the huge problem, उस प्रॉब्लम को छोटे छोटे पीसेस में कट करके, ब्रेक करके, उन छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, दैट इज व्हाट डायनामिक प्रोग्रामिंग विल डू। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स में कैसे हो रहा था, वो लोग पूरा जो सीक्वेंस है उसी को कंपेयर कर रहे थे, लेकिन डायनामिक में क्या होगा ना, उसको भी वो लोग ब्रेक डाउन करेंगे। कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। ठीक है, just know कि dynamic programming में they are going to break down the alignment of the sequences into
स्मॉलर पार्ट्स नहीं, छोटे छोटे पार्ट्स में वो लोग बड़े से प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में ब्रेक डाउन करके उन सब प्रॉब्लम्स को वो लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे. ठीक है. इट इज फंडामेंटली सिमिलर टू द डॉट मैट्रिक्स मेथड. मतलब बेस उसका क्या सिमिलर है, वो भी एक टू डिमेंशनल मैट्रिक्स बनाएगा या ग्रिड बनाएगा, बट इट विल आल्सो कीप अ ट्रैक ऑफ ऑल द मैचिंग पेयर्स. ठीक है, ये भी हम देखेंगे. ठीक है, कैसे क्या होता है. Now when calculating a similarity score, अब इसमें क्या है, स्कोर कैलकुलेट जब होता है तो जो गैप्स होते हैं दे आर पेनलाइज्ड मोर हेवीली देन मिसमैचेस. इसका भी क्या मतलब होता है, जब टेबल एक्सप्लेन करूंगी तो और क्लियर हो जाएगा. Now by searching for the set of highest scores in this matrix, जैसे यहाँ डायगोनल बनता है वहां पे भी डायगोनल बनता है, but in dynamic programming instead of putting dots we're going to give them scores, जैसे कि 1 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया. ठीक है, and it will keep adding up till we reach the end, right bottom end of the table. वो कैसे करते हैं वो भी मैं बताऊंगी, बट फॉर नाउ जस्ट नो कि उस मैट्रिक्स में इंस्टेड ऑफ पुटिंग डॉट्स, यानी डीपी मेथड में इंस्टेड ऑफ पुटिंग डॉट्स वी आर गोइंग टू गिव देम स्कोर्स. फॉर द सिमिलैरिटी हम स्कोर देंगे. अब जो भी स्कोर्स सबसे हाईएस्ट रहेंगे उसका वो अलाइनमेंट सबसे बेस्ट रहेगा. हाईएस्ट स्कोर, हाईएस्ट अलाइनमेंट और बेस्ट अलाइनमेंट, ये याद रखना है. So the best alignment can be accurately obtained. So what is the best alignment? It is the alignment which is having the largest number of matches and few mismatches and gaps. ठीक है, तो DP मेथड के जो alignment रहेगा उसमें they are going to, that program is going to search for the diagonal or for the score which is having the highest number of matches. उसमें वो लोग देखेंगे कि mismatch और gap कम से कम हो. Okay. Now, using dynamic programming to find a longest common subsequence of 2 DNA sequences. ये हम एग्जाम्पल के हेल्प से समझने वाले हैं कि डीपी एग्जैक्टली कैसे काम करता है. So your longest common subsequence will be what? जैसे मैंने पहले बोला था, बड़ा सा प्रॉब्लम है related with your sequence. Query sequence is your problem, huge problem. ठीक है, उस बड़े से प्रॉब्लम को हम छोटो छोटो प्रॉब्लम्स में कट करने वाले, यानी तुम्हारे बड़े से सीक्वेंस को हम सब सीक्वेंसेस में ब्रेक डाउन करेंगे. सो वी आर गोइंग टू यूज डीपी टू फाइंड द लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस, दैट इज योर एलसीएस. ठीक है, यानी सबसे बेस्ट अलाइनमेंट हम ढूंढने वाले शॉर्ट में. ओके, नाउ बायोलॉजिस्ट्स हु फाइंड अ न्यू जीन सीक्वेंस टिपिकली want to know the what other sequence it is most similar to, है ना. ये तो हमने डिस्कस कर चुके हैं कि हम क्यों कर रहे हैं सीक्वेंस अलाइनमेंट. जस्ट टू नो कि मेरा जो अननोन सीक्वेंस है वो कौन से नोन सीक्वेंस के साथ सबसे क्लोजेस्ट है, या सबसे क्वेरी सीक्वेंस को और टारगेट सीक्वेंस को कंपेयर करके आई एम गोइंग टू फाइंड द एलसीएस, द लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस, जिससे मुझे पता चलेगा कि वो कितने सिमिलर है. Longer the LCS, the more similar they are. It is as relatable to as in the dot matrix. जितना लंबा diagonal, उतना वो similar. The same way, the longer the LCS, more similar they are. Dot matrix में जितना छोटा diagonal, उतना वो कम similar. जितना लंबा उसका diagonal, उतना वो similar. यहाँ तक समझा है दोनों में डिफरेंस क्या है? समझा है कि नहीं? यस मैम. छाया समझा तुमको? नो मैम, डिफरेंस नहीं समझा. वो डॉट मैट्रिक्स समझा लेकिन इसमें नहीं समझा मुझे. ठीक है, हम लोग जब टेबल वगैरह देखेंगे ना तो मैं और इजी वे में समझाने की कोशिश करूंगी. फॉर नाउ जस्ट नो कि एक बड़ा सा सीक्वेंस है. ठीक है, ये बड़ा सा मेरा सीक्वेंस है, मेरा पेन. ठीक है, डीपी मेथड क्या करने वाला है, इसका जो एल्गोरिदम है वो क्या करेगा, इसके छोटे छोटे पार्ट्स करेगा. तो मेरा जो बड़ा सा सीक्वेंस है इट इज गोइंग टू ब्रेक इट डाउन इनटू सब सीक्वेंसेस एंड उस सब सीक्वेंस को वो कंपेयर करेंगे.
कैसे करेंगे वो मैं बताती हूँ। फॉर नाउ जस्ट नो कि बड़ा सा सीक्वेंस है या बड़ा सा प्रॉब्लम है, उसको छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में वो ब्रेक डाउन करके उसको सॉल्व करेगा। We are going to search for the longest common subsequence as good as searching the longest diagonal. डॉट मैट्रिक्स में हमने डायगनल ढूंढा था बराबर, तो जितना लंबा डायगनल है उतना हम बोलेंगे कि वो दोनों सीक्वेंसेस सिमिलर है। इन द सेम वे LCS जितना लंबा रहेगा उतना ही हम बोलेंगे वो दोनों सीक्वेंसेस उतने सिमिलर है। दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ओके, to compute LCS efficiently using dynamic programming, you start by constructing a table. Same चीज। So यहाँ पर भी हम एक टेबल, एक 2-dimensional मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है। In the matrix, the sequence S of length M is on the y axis, ठीक है। तो तुम्हारे y axis पे एक सीक्वेंस है जिसका लेंथ है M, तुम्हारे x axis पर सीक्वेंस T है जिसका लेंथ N है, ठीक है। एंड एवरी पोजिशन I is compared with every position J। इजी में मैं बताती हूँ क्या है। तो ये तुम्हारा टेबल बनेगा, पहले तो तुम टेबल बनाओगे, ठीक है। तो दिस इज माय सीक्वेंस S व्हिच इज ऑन सीक्वेंस T, ठीक है, व्हिच इज ऑन द x एक्सिस, एंड सीक्वेंस Y आई मीन सीक्वेंस S व्हिच इज ऑन योर y एक्सिस, बराबर। सीक्वेंस T इज ऑन द x एक्सिस, ओके। सो दिस इज योर 2D मैट्रिक्स। ये पूरा जो टेबल है वो तुम्हारा 2D मैट्रिक्स है। ऊपर वाला मेरा सीक्वेंस T है on x axis and this is my sequence S on the y axis. Okay, so I'm going to compare every position I, ये position I with every position J. Okay. Now again ये मेरा table आएगा यहाँ पर. So just remember the table here and the table here आगे, ठीक है। हमने ये 0 0 भी डाला है यहाँ पर। Now, the idea is that you'll fill up the table from top to bottom, from left to right. ऊपर से हमें नीचे आना है, लेकिन कैसे जाना है? लेफ्ट से राइट तक जाना है, फिर नीचे आना है लेफ्ट से राइट, फिर नीचे लेफ्ट टू राइट, यहां तक आना है हमको, ठीक है। And each cell will contain a solution to a sub problem of the original solution. ठीक है, ये मेरा बड़ा सा प्रॉब्लम है, इसको मैं ब्रेक डाउन करूंगी टू सब प्रॉब्लम्स। तो इसमें जो मेरा आंसर आने वाला है, इट इज गोइंग टू बी माय सॉल्यूशन टू ओनली दिस प्रॉब्लम, ओके। नाउ द वैल्यू ऑफ एनी ऑफ दीज LCSs विल बी 0, माने यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट कॉमन सीक्वेंस है, यहाँ पे तो कोई सीक्वेंस कॉमन नहीं है तो 0 आएगा, यहाँ पे भी कोई नहीं है तो यहाँ पर भी, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, इसके लिए यहाँ पे 0 आया है, ठीक है। वी आर नॉट सीइंग दिस एंड दिस नाउ। फॉर नाउ वी आर स्टार्टिंग विद दिस सेकेंड सेल एंड दिस सेकेंड सेल, नॉट द थर्ड सेल। ये दूसरा सेल देख रहा है और यहाँ से दूसरा सेल देख रहा है, यहाँ पे तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसके लिए यहाँ पे सब 0 आया है, ठीक है। जस्ट फॉर नाउ जस्ट नो दैट कि वहां पे 0 क्यों है। नाउ व्हेन यू फिल अ सेल, यानी कि ये एक सेल है, ये सेल भरते वक्त हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू कीप इन माइंड द सेल व्हिच इज अबव लेफ्ट टू इट, माने यहाँ पे, ओके मैं यहाँ डॉट ही डाल देती हूँ। इस सेल में मुझे भरना है कुछ, ठीक है। तो whenever I have to fill this cell, मुझे कौन कौन सी चीजें याद रखनी है? मुझे ये सेल याद रखना है, ठीक है। The one which is above, above माने ऊपर, and left to it, diagonal हो गया, बराबर। So the diagonal cell, I have to remember the cell which is directly above it, यानी कि जो सेल exactly ऊपर है, and the cell which is directly to the left of it, यानी कि ये वाला। तो मुझे ये मेरा सेल है, इसके ऊपर वाला, इसके डायगोनल वाला और उसके लेफ्ट वाला, ये तीनों सेल्स मुझे याद रखने हैं, ठीक है। सो व्हेन आई एम फिलिंग दिस सेल, आई हैव टू रिमेंबर अबाउट दिस सेल एंड दिस सेल। सेम फॉर दिस, ऊपर का सेल, डायगोनल का सेल, लेफ्ट का सेल। यहां तक समझा? जल्दी हाँ या ना बोलो, आगे बहुत है। यस मैम। Yes. ओके, ठीक है।
सो यहाँ तक हमने देखा कि हमने एक टेबल बनाया है, ठीक है, मेरा एक सीक्वेंस एक्स एक्सिस पर है, एक सीक्वेंस वाई एक्सिस पर है, and whenever I have to fill the cell, means when I'm going to compare my bases or my protein residues, I'm going to consider 3 cells, the one which is above it, the one which is diagonal to it, and the one which is to the left of it. And this is applicable to every cell. मतलब अगर मुझे इस cell में भरना है तो I have to remember this cell as well as this cell. उसमें क्या याद रखना है वो भी मैं आगे बताऊंगी, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है होपफुली? यस मैम। नाउ दिस इज द सेम टेबल, बट इसमें हमने आगे यहाँ पे हमने भर दिया, हमने यहाँ पे स्कोर्स दे दिए। वो स्कोर्स कैसे देना है, ये सारे एरोज का मतलब क्या है मैं बताऊंगी। डोंट गेट कंफ्यूज या टेंशन, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, धीरे धीरे समझेगा, बस ध्यान दो। सो you will fill this empty cell with the maximum of these 3 numbers. कौन से 3 नंबर है जिसका तीनों का सबसे मैक्सिमम पार्ट यू हैव टू फिल? ओके, मैक्सिमम ऑफ द 3 नंबर्स, यानी कि 3 नंबर्स होंगे ए बी सी, उन तीनों में से कौन सा नंबर सबसे बड़ा है वो मैं यहाँ पे भरूंगी। अगर ये ए है, बी है, सी है ना, अभी मुझे ये सेल भरना है तो आई हैव टू आल्सो कंसिडर दिस सेल एज वेल एज दिस सेल, बराबर। अभी इन तीनों में कुछ वैल्यूज है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पर 0 है। इन तीनों में से सबसे मैक्सिमम वाला नंबर जो रहेगा वो मैं यहाँ पे भरूंगी। that is the meaning of this statement. You will fill each of the empty cell with the maximum of the 3 numbers. कौन से 3 numbers? There is V1 which is the value to the left, है ना? There is V2 which is the value in the cell above, and V3 which is the value to the cell above left, यानी कि diagonal में जो। तो कैसे जाता है? There is V1, then V2 and V3, यानी कि अगर मुझे ये सेल भरना है तो आई विल फर्स्ट कंसिडर V1 हियर, है ना, द सेल टू द लेफ्ट, सो V1 देन V2 एंड V3। इन तीनों में से जो भी नंबर सबसे बड़ा रहेगा वो नंबर मैं यहां भरूंगी। ये समझा यहाँ तक? हाँ मैम। मैम हाँ, बट वो 3 और 2 कैसे आया? क्या क्या कहाँ पे क्या? ये 3 नंबर कैसे लिखे? मैं मतलब बता रही हूँ ना, मैं बता रही हूँ, हम लोग वहां अभी तक पहुंचे नहीं है, हम अभी तक ये एम्प्टी सेल में ही है कि हम ये एम्प्टी सेल में कौन से नंबर डालेंगे मैं वो बता रही हूँ, या कहाँ से वो नंबर आने वाले मैं वो बता रही हूँ। ये मैं बताती हूँ ना कैसे आता है। ओके मैम। ओके, सो इधर आई विल फिल V1, V2, V3 plus 1। अब ये V3 plus 1 कब आता है? जब ये C1 is equal to C2। ठीक है, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इसके लिए मैं पहले ये बताती हूँ कि ये सब कहाँ से आए। अब दिस वुड हैव बीन वेरी इजी अगर मैं तुमको बोर्ड पे सिखा पाती तो। ओके, जस्ट बी विद मी। अभी ये 0 0 तो हमने पहले ही भरे थे, बराबर। अभी ये 1 कहाँ से आया? सबसे पहला क्वेश्चन है, ये 1 कहाँ से आया? अब हमने देखा था कि जब अभी ये सेल इनिशियली एम्प्टी था, बराबर। इफ आई हैव टू फिल दिस सेल आई हैव टू कंसिडर द P3 सेल्स, मतलब ये V1 कंसिडर करना है, ये V2 कंसिडर करना है और ये V3 कंसिडर करना है, जिसमें वैल्यूज क्या है? सब 0 है। बट दे हैव गिवन अ क्राइटेरिया हियर कि आई विल फिल V3 plus 1, यानी V3 में यहाँ पर V3 में क्या है? 0 है ना, ये मेरा V1 है, V2 है, V3 है। V3 में मेरा वैल्यू क्या है? 0 है। आई विल फिल V3 plus 1 if C1 is equal to C2, मतलब ये C1 is equal to C2, ये C1, ये C2, ये C1, ये C2, content of the first sequence against the content of the second sequence। तो यहाँ पर G and G सिमिलर है, बराबर, which means C1 is equal to C2, करेक्ट। तो यहाँ पर अब मैं क्या डालूंगी? एक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग V3 plus 1, बरोबर। तो ये क्या है? 0 plus 1, 0 plus 1 is
1 एंड ये एरो क्या डिनोट करता है कि मैंने यहाँ पे जो वैल्यू डाला हुआ है मैंने इस सेल के बेसिस पे डाला हुआ है। ओके इसके लिए मेरा यहाँ 1 आ गया। नाउ विल मूव ऑन टू द सेकंड सेल। अब यहाँ पर G है और C है, दे आर नॉट इक्वल, तो आई विल पुट ओनली V3 if C1 is not equal to C2। करेक्ट। अब मुझे यहाँ पे क्या कंसिडर करना है, पहले तो V3 अगर हम ये क्राइटेरिया देखेंगे तो इसके हिसाब से मुझे 0 डालना चाहिए था बिकॉज दे आर नॉट इक्वल। बट प्रीवियस स्लाइड में हमने यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है ऊपर ही, वी हैव टू फिल इट विद द मैक्सिमम ऑफ दीज 3 नंबर्स। इसका मतलब क्या होगा कि ये V1, ये V2 और ये V3, इन तीनों में से सबसे बड़ा नंबर किसका है, 1 है, बराबर। इसलिए मैंने यहाँ पर 1 डाला हुआ है एंड एरो डिनोट्स व्हाट कि मैंने इस सेल के बेसिस पर यहाँ पे वैल्यू भरी हुई है। द सेम गोज फॉर द अदर्स, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, सब में 1 1 है, राइट। अब ये 1 यहाँ पर कहाँ से आया और ये 1 कहाँ से आया, बिकॉज ये G एंड दिस G कॉमन हो गए ना, सिमिलर हो गए, मतलब ये पेयर हो गए, राइट। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, C1 इज इक्वल टू C2 है तो V3 प्लस 1, इसका V3 क्या है, ये है ना, ये V1, ये V2, ये V3, so V3 plus 1, so 0 plus 1 is 1, correct, but the arrow क्या है, V3 के आगे, मतलब towards V3, so this value is come from here. Same goes for this, V3 plus 1, 0 plus 1. यहाँ तक समझा? ओके ओके, तो सो फार ये था सेल को कैसे भरना है, ठीक है, यानी एरोज क्या डिनोट करते हैं। तो इफ वी कीप डूइंग द सेम थिंग वी विल एंड अप फिलिंग द एंटायर टेबल। ओके एंड ये एरोज इंपॉर्टेंट क्यों है, जब हमें एक्चुअली एलसीएस कैलकुलेट करना है, यानी कि लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस एक्चुअली जब हमें कैलकुलेट करना है, ये एरोज हमें हेल्प करने वाले, ठीक है। नाउ ट्रैकिंग बैक टू फाइंड एन एक्चुअल एलसीएस, तो हम लोग क्या करने वाले, वी आर गोइंग टू ट्रेस बैक, हम पीछे जाने वाले, ठीक है। वी आर गोइंग टू यूज दोस एरोज टू गो बैक। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द सेल, टेबल का जो सबसे लोएस्ट राइट कॉर्नर था, हम वहां से पीछे की तरफ जाने वाले एंड वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ डायगोनल, ठीक है। तो ये ऐसे है ना, ये हमारा कंप्लीटेड सेल था, तो आई मीन टेबल था। वी स्टार्ट विद द राइट कॉर्नर, लोअर राइट कॉर्नर, ठीक है, एंड वी आर गोइंग टू गो बैक, वी आर गोइंग टू फॉलो दिस डायगोनल। तो यहाँ पे हाईएस्ट स्कोर इज 5, फिर हम पीछे 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 जा रहे हैं, यहाँ हाईएस्ट स्कोर इज 4, फिर हम वी आर गोइंग टू ऑलवेज फॉलो द डायगोनल एरोज, नॉट द हॉरिजॉन्टल और द वर्टिकल एरोज, है ना। यहाँ हॉरिजॉन्टल एरोज है, यहाँ पे वर्टिकल एरोज है, वी आर आइदर गोइंग टू फॉलो द डायगोनल एरोज। तो हम 5 से हम 4 पे गए, वी आर गोइंग टू फॉलो डायगोनल एरो, अच्छा यहाँ पे जा रहा है, देन द हाईएस्ट स्कोर इज 3 हियर, फिर हम ये डायगोनल एरो हम फॉलो कर रहे हैं, हाईएस्ट स्कोर इज 2, फिर 2 के बाद है 1, 1 के बाद है 0। सो दिस राइट हियर इज माय LCS। ओके, तो मेरा LCS यहाँ पर क्या है, GCCAG, दैट इज माय कॉमन सीक्वेंस या मैं सीक्वेंस अलाइनमेंट का सिमिलैरिटी जो है वो है GCCAG। ये G, ये C, बराबर, ये G एंड G का 1 स्कोर, C एंड C का सेकंड यानी 2, ये C एंड ये C का 3, ये A और ये A का 4, ये G और ये G का 5। तो व्हाट आर माय कॉमन or my similar bases in the two sequences G, C, C, A and G, that becomes my LCS। तो ये जो पूरा काम है वो हमारा प्रोग्राम करता है and that's when we get the end result of this GCCAG। तो हम लोग क्या करते हैं, we just copy paste the query sequence in the search box, हम sequence alignment में hit करते हैं, we type go or search or run and this is the answer we get।
बट ये है तुम्हारा पूरा बैक एंड वर्क जो वो प्रोग्राम या एल्गोरिदम या वो टूल करता है। ओके, यहाँ तक समझा? हाँ मैम। आई नो कुछ लोगों की